Hello students, welcome to my last minute revision videos. Hardly 1 month left for your board exam. So I will be covering all the concepts from this chapter which will help you to ace in your board exam. So without wasting any time, let's start the chapter derivative. And a formula sheet will be displayed at the end of this video. As you are aware that there are altogether 6 exercises in this chapter derivative. In part 1, I will be covering first 3 exercises and in part 2, I will be covering last 3 exercises. The first exercise name is chain rule. So chain rule is, first of all I am going to write down the chain rule. Now, chain rule is dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Now this is the formula of chain rule. So now in this exercise there are two patterns which will come. First, the most favorite pattern, y is equal to root of x plus 1 upon x. मतलब या तो एक ये पैटर्न का होता है स्क्वायर रूट वाला या तो पावर वाला होता है. So first I am going to cover the square root वाला pattern and then second sum I will be covering for power वाला sum. Okay, let's start. Now in this exercise what you need to do is either आपको एक u मानना पड़ेगा. Okay, तो इसमें आपको u मानना है तो कैसे करना है, सिंपल है. यूजुअली आपको एक हिंट देती हूँ, स्क्वायर रूट में जो कोई भी होता है इक्वेशन उसको आप हमेशा u मानिएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस y is equal to root u where u is equal to x plus 1 upon x. तो मैंने स्क्वायर रूट में जो इक्वेशन था x plus 1 upon x इसको मैंने u मान लिया. So this sum will become like this, y is equal to root u. Why? Because then it will be easy for us to calculate the derivative. कैसे करना है यहाँ पे देखिए. First I'll differentiate this. So this will be differentiating with respect to x. With respect to u, we get. Okay. Now कैसे होगा ये? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करेंगे y is equal to root u. डिफरेंशिएट करना है तो dy by du. बिकॉज जो भी इक्वेशन ये वेरिएबल में होता है वो नीचे आता है हमेशा, याद रखिएगा. तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू, नाउ यू नो दैट रूट x का डेरिवेटिव है 1 upon 2 root x. सो हियर इट विल बी 1 upon 2 root u. राइट, तो हमारा ये काम हो गया dy upon du का. इज दैट क्लियर? नाउ वी वांट du upon dx. तो du upon dx के लिए क्या करना है, लेट्स स्टार्ट. अभी हमारा u ये था तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x. अगेन सेम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Then here it will be du upon dx is equal to x का डेरिवेटिव होता है 1 and 1 upon x का डेरिवेटिव होता है minus 1 upon x square. So here I'm going to write it down. Okay. Now last में आपको क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है. Because chain rule is dy by dx is equal to dy by du जो आपने यहाँ पे निकाला है and into du upon dx जो आपने यहाँ पे निकाला है. Okay, so let's start. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ dy upon du is equal to 1 upon 2 root u. तो अभी मुझे दोनों भी लगेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका, यहाँ पे लिखिए therefore dy by dx is equal to dy by du is this 1 upon 2 root u into du by dx is this 1 minus 1 upon x square. That is equal to, but u is what? X plus 1 upon x. So here I'll write 1 upon 2 into square root में x plus 1 upon x into 1 minus 1 upon x square.
So now the last answer will be dy by dx इज इक्वल टू, आपको चाहिए तो ये 1/2 आप बाहर ले सकते हो और ये ऊपर ले सकते हो. सो दिस विल बी लाइक दिस 1/2. ये अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर विल बिकम नेगेटिव, राइट, सॉरी माइनस हाफ, and this will be as it is 1 minus 1 upon x square. So this will be the final answer. Now let's start with the chapter derivative and the first exercise, chain rule. So first I am going to write down the chain rule. dy by dx is equal to dy by du into du upon dx. This is the chain rule. Now the sum is like this. If y is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x the whole bracket raised to 9, then find derivative, find dy by dx. Now what we will do is, students, in such scenario first आपको क्या करना है, u को एज्यूम करना है. u को आप कैसे एज्यूम करोगे, जो ब्रैकेट में दिया रहेगा that will be your u. So now I'll write like this. Here u is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x, right? So this problem will become like this. Therefore y is equal to u for this raised to 9. देखो सिंप्लीफाई हो गया, शॉर्ट हो गया. Now what we'll do is, immediately I'll calculate the derivative because I want dy upon du. So here I'll calculate like this. Therefore derivative of y with respect to u is equal to, by power function 9 यहाँ पे मल्टीपल होगा और ऊपर से एक कम होगा. So this will be 9u raised to 8. This will be the derivative of this, right? Now we want du upon dx because ये काम तो हमारा हो गया. So du upon dx is what? That means आपने जिसको u माना है उसका डेरिवेटिव निकालना है with respect to x. So here it will be, I'll write like this. U is equal to, first of all I'll write u is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x. This is my u, right, which I have assumed. Therefore du upon dx. Now I am going to calculate derivative of u with respect to x is like this. 5x cube, तो 5 तो साइड में होगा, x cube पावर फंक्शन से कैसे होगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर से एक कम होगा. So this will be 3x square, but 5 will get multiplied to 3, so here it will be 15x square. Then minus 4 मल्टीपल होने की वजह से साइड में रहेगा. x स्क्वायर का अगेन पावर फंक्शन के हिसाब से 2 नीचे आ जाएगा, 2x एंड ऊपर से एक कम, तो 2x is to 1, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है. सो 2x is to 1, तो 2 will get multiplied by 2, 4, so it will be 8x एंड माइनस 8 मल्टीपल साइड में ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव होता है 1. सो दिस विल बी द du अपॉन dx. ये इसका आंसर आ जाएगा. नाउ आई हैव टू मर्ज बोथ because ultimately my chain rule is this, dy upon du into du upon dx. So final answer will be dy by dx is equal to, first I'll write dy upon du. So dy upon du is this, so I'll write 9u raised to 8, right, into, now next I want du upon dx. So into du upon dx is this, so I'll write 15x square minus 8x minus 8. So therefore dy by dx, last step will be, you need to substitute because u is nothing but what, 5x cube minus 4x square minus 8x. So I need to substitute in place of u. So I'll write like this, 9 into bracket, in place of u I'll write this 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 8, in other bracket 15x square minus 8x minus 8. So this will be the final answer.
Now let's start with the chapter derivative, exercise number 3.2, which is nothing but derivative of inverse function. Now that is dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx. So students usually हम लोग क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy upon dx निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. बट एज इट इज ऑफ इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे हमें क्या पूछा जाएगा, dx अपॉन dy. तो इट इज वेरी सिंपल. क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx फर्स्ट एंड देन आपको वो खाली डिनोमिनेटर पोजीशन में लिखना है, सो दैट यू विल गेट dx अपॉन dy. कैसे करना है, स्टार्ट करेंगे. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x of a commodity with respect to its price y, where they have given you y is equal to 12 plus 10x plus 25x square. So this is the equation which they have given you as a y equal to. Now first we will calculate dy upon dx only. So I'll start like this. Now y आपको दिया गया है. Let's start. Therefore dy upon dx is equal to, now first number is 12. Now आपको पता है constant number का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, 0. 10x 10 मल्टीपल हम लोग साइड में करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, तो हियर इट विल बी ओनली 10 बिकॉज 10 इंटू 1 10. देन प्लस 25x स्क्वायर, तो 25 मल्टीपल होने से साइड में ले लेंगे, x स्क्वायर बाय पावर फंक्शन इट विल बी 2x. ओके, क्योंकि 2 यहाँ पे नीचे आएगा और ऊपर से 1 कम हो जाएगा, तो इट विल बी 2x. बट 2x इंटू 25 विल गिव यू 50x. So this is dy by dx of this sum, but we want dx upon dy. So उसको हम लोग inverse करेंगे. Therefore dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx. तो ये हमारा dy upon dx था, उसको खाली नीचे लिखना है आपको. That's it. This is the final answer. Now from derivative chapter, exercise 3.3, that is logarithmic function. तो इस एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो लेट्स स्टार्ट. कैसे करना है यहाँ पे देखिए. फाइंड dy by dx if y is equal to x raised to e raised to x. So this is the sum given to us. Now first, as I said earlier, logarithmic function first of all identify कैसे करना है. अगर आपको ऊपर कोई पावर दिया रहेगा तो यूजुअली यहाँ पे हम लोग log अप्लाई करेंगे. तो कैसे करना है, I'll write like this. Taking log on both sides we get, अब यहाँ पे हमें log both sides लेना है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे. So it will be like this. Log y is equal to log of x raised to e raised to x. Now we have to find out the derivative. So immediately differentiate with respect to x. Next step will be, now log y, आपको पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x. तो in the same manner log y का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon y. बट दैट इज आउटर डेरिवेटिव. इनर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा y का, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx. तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस. log y आउटर डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन y इंटू इनर डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, तो y का डेरिवेटिव होता है dy by dx. सो एवरी टाइम व्हेनेवर log y विल राइट, आपको यहाँ पे वहाँ पे क्या लिखना है, 1 अपॉन y इंटू dy by dx. दिस विल बी द डेरिवेटिव इज इक्वल टू. Now, as per basic laws of logarithms, log में जहाँ पे पावर होती है that becomes multiple. तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा e raised to x log x. तो अभी इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, but that will be in the form of u into v. So let's start. 1 upon y into dy by dx, ये ऐसे ही रहेगा, is equal to, now this will be u into v form. Let us start with the product rule. प्रोडक्ट रूल आपका क्या होता है, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. मतलब जहाँ पे दो आपको ये मिल जाते हैं तो पहले टर्म को आप u बोलते हो, सेकंड टर्म को आप v बोलोगे, राइट. तो यहाँ पे हमारा u ये होगा और v ये होगा. ओके, नाउ द प्रोडक्ट रूल इज लाइक दिस. u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u.
तो इन द सेम मैनर हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन u लाइक दिस. u तभी डेरिवेटिव निकालना है किसका, v का, मतलब log x का, प्लस v तभी डेरिवेटिव निकालना है किसका, u का, that is e raised to x. So again 1 upon y into dy by dx is equal to e raised to x जैसे थे, बिकॉज इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, बट डेरिवेटिव ऑफ log x, तो एज आई सेड अर्लियर log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो इनटू 1 अपॉन x, तो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, प्लस log x इनटू e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x ओनली, सो e raised to x will be like this. Same. Therefore 1 upon y into dy by dx is equal to, now what we'll do, we'll take common e raised to x, because e raised to x देखो दोनों टर्म्स में, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर, so e raised to x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 upon x प्लस log x, बिकॉज मैंने e raised to x को दोनों को बाहर निकाला कॉमन. Now therefore but we want dy by dx only, so therefore dy by dx is equal to, now ये 1 upon y जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो इट विल गेट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वो डिवाइड करके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू e raised to x इंटू ब्रैकेट 1 upon x प्लस log x. Therefore dy by dx is equal to, but what is y, तो y हमारा ये है, तो उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो x रेस टू e रेस टू x, ये हमारा y है, तो ये मैं y के प्लेस में लिख रही हूँ, इंटू e रेस टू x जैसे बाकी का सब सेम. So this will be our final answer. Exercise 3.3 logarithmic function. The question is like this: find dy by dx if y equal to 5 raised to x plus x raised to x. So students, this is their favorite question. So again पावर में देखिए रेस टू x, ओके, तो जहाँ पे पावर होती है यूजुअली हम लोग वहाँ पे log लेते हैं. Let us start how to do that. Again same, taking log on both sides we get, तो यहाँ पे होगा log y is equal to log 5 raised to x plus log x raised to x, तो ये हमारा हो जाएगा. After this what we need to do is again log y. Now as basic laws of logarithm के एंगल से जो पावर होती है that gets multiplied, तो यहाँ पे ऐसे होगा x into log 5 प्लस x, ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी x into log x. Clear? After this now we are going to start with the procedure differentiation. So differentiating with respect to x we get, now for log y outer derivative just like log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, in the same manner log y का डेरिवेटिव होगा 1 upon y, but that is outer derivative. एक्चुअल आपको दिया हुआ है log y, मतलब y भी पूछा है, तो y का इनर डेरिवेटिव होता है dy by dx, तो log y का पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा 1 upon y into dy by dx is equal to, now this will be like u into v product rule again. So product rule हमारा कैसे है, आपको दो टर्म्स दिए जाते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपकी u होती है, नेक्स्ट टर्म आपकी v होती है, यहाँ पे भी ये u होगी ये v होगी, सो u into derivative of v plus v into derivative of u, ऐसे हम लोग करेंगे. So let's start. See first I'll write u, तभी डेरिवेटिव निकालना है हमें log 5 का प्लस log 5, मतलब v वैसे के वैसे रहेगा, तभी डेरिवेटिव निकालना है x का, ये हुआ इसका, ये कंटिन्यूएशन में इसका भी हम लोग करेंगे, प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, राइट. नेक्स्ट therefore 1 upon y इंटू
dy by dx इज इक्वल टू, नाउ लेट्स स्टार्ट, x वैसे के वैसे ही. नाउ इसका डेरिवेटिव log phi एज दिस इज कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, सो दिस विल बी 0 प्लस यहाँ पे log phi वैसे के वैसे ही x का डेरिवेटिव होता है 1, सो इंटू 1. कंटिन्यू करेंगे प्लस ये x वैसे के वैसे ही. नाउ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू 1/x प्लस कंटिन्यू करेंगे log x वैसे के वैसे ही इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो इन नेक्स्ट लाइन देयरफॉर 1/y इंटू dy by dx is equal to x into 0 0 log phi into 1 log phi. So directly I am going to write log phi plus ये कट हो जाएंगे x x, so it will be 1 और log x into 1 log x. Therefore final answer will be dy by dx. Now ये y वहां पे चला जाएगा, it will get multiply is equal to y into log phi plus 1 plus log x. But again y is what? y हम लोगों ने ये लिखा है, ये सम में दिया हुआ है. So dy by dx is equal to, in place of y I'll substitute this, phi raised to x plus x raised to x into log phi plus 1 plus log x. So this will be the final answer. Students, the sum from logarithmic function is y equal to cube root of 3x minus 1 whole divided by 2x plus 3 into 5 minus x the bracket square. Now first of all हम लोग उसको simplify कर लेते हैं. In a sense, therefore y equal to 3x minus 1, तो ये क्यूब रूट है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, यहाँ पे भी ये क्यूब रूट के अंदर है तो रेज टू 1/3 5 माइनस एक्स, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए दिस विल बिकम 2/3. मतलब हम लोगों ने सम में लिख लिया बट इन द फॉर्म ऑफ पावर. नाउ लेट अस स्टार्ट. एज आई सेड अर्लियर कि जब पावर्स ऊपर होते हैं तो हमें लॉग लेने की जरूरत है. तो दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन अगेन, सो विल स्टार्ट टेकिंग log on both sides. We get यहाँ पे होगा therefore log y is equal to log of ब्रैकेट में सब 3x minus 1 raised to 1/3 whole divided by 2x plus 3 raised to 1/3 and another bracket 5 minus x raised to 2/3. ओके, तो दोनों जगह पे log ले लिया. उसके बाद therefore log y is equal to, now what we'll do, हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे. इन अ सेंस जो बेसिक लॉज है लॉगरिथम के, तो आपको तो पता है कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है उन दोनों ब्रैकेट्स में एडिशन होती है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लिख लेंगे log 3x minus 1 raised to 1/3, ये मैंने यहाँ का लिख लिया. नाउ ये दोनों ये टर्म के लिए डिवाइड है तो इसके लिए ये दोनों इनके लिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस अनदर ब्रैकेट, बट इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन की वजह से इन दोनों में एडिशन हो जाएगी. सो log ऑफ 2x plus 3 raised to 1/3 and this will get continued plus log of 5 minus x raised to 2/3. Here the bracket will get completed. Therefore log y is equal to, now again same logarithm rules के एंगल से जो पावर होती है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है. So this will become like this 1/3 log of 3x minus 1 माइनस ब्रैकेट में ये 1/3 यहाँ पे आ जाएगा 1/3 log ऑफ 2x plus 3, राइट, प्लस
ये 2/3 यहाँ पे आ जाएगा 2/3 log ऑफ 5u minus x. Now we'll start with the differentiation. So here it will be differentiate with respect to x. We get यहाँ पे log y के यहाँ पे log y का डेरिवेटिव होता है log x जैसे 1/x, तो यहाँ पे log y का होगा 1/y. बट दिस इज आउटर डेरिवेटिव. y का डेरिवेटिव होता है dy/dx. सो दैट वी गेट मल्टीप्लाइड dy/dx इज इक्वल टू. नाउ यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे. 1/3 को हम लोग मल्टीपल होने के लिए ऐसे लिखेंगे, बट log x जैसे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. इन द सेम मैनर इसका डेरिवेटिव होगा log x जैसे 1/3 ऑफ x माइनस 1. सो इंटू 1/3x माइनस 1. ये log x जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, बट अगेन इनर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. इनर डेरिवेटिव विल बी, तो मैं इंटू लिखूँ d/dx ऑफ 3x माइनस 1. तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. देन आई ओपन द ब्रैकेट माइनस ये 1/3 वैसे के वैसे मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू 1/2x प्लस 3 log x के एंगल से, बट इंटू इनर डेरिवेटिव होगा d/dx ऑफ 2x प्लस 3. राइट, ये भी माइनस हो जाएगा बिकॉज वी ओपन द ब्रैकेट नाउ. सो दिस विल बी माइनस 2/3. राइट, देन इंटू log x के एंगल से 1/5 माइनस x, बट इंटू इनर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस x. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ये 1/y dy/dx मैं यहाँ पे ले लूँ. सम 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये 1/3 वैसे के वैसे ही इंटू 3x माइनस 1. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. 3x का डेरिवेटिव होता है 3 और 1 बीइंग कांस्टेंट नंबर 0, तो इस सब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3. तो आई डायरेक्टली राइट इंटू ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3/3x माइनस 1. राइट, माइनस 1/3 अगेन यहाँ पे ये 1/2x/3, सॉरी 2x प्लस 3. बट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 एंड 3 का 0, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम 2. नाउ माइनस 2/3, तो 2/3 के यहाँ पे इंटू 1/5 माइनस x वैसे के वैसे ही, बट इसका डेरिवेटिव 5 का 0 एंड माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो मैं यहाँ पे माइनस 1 लिख देती हूँ. क्लियर. नाउ अगेन देयरफॉर 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू. नाउ जहाँ जहाँ पे कैंसिल हो रहा है वहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे. तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे. राइट, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. सो नाउ फाइनली विल गेट लाइक दिस 1/3x माइनस 1. राइट, दिस विल बी माइनस 2/3 इंटू ब्रैकेट ये 2x प्लस 3 प्लस अभी -2 इंटू -1 विल बिकम प्लस. सो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा 2/3 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस x. ओके, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू. नाउ ये y मैं अभी वहाँ पे ले रही हूँ, तो दिस विल बी लाइक दिस. अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो दैट आई गेट 3 कॉमन बाहर. तो मैं यहाँ पे लिख लूँ y, तो यहाँ चला गया y/3. ओके, बिकॉज यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे मैं 3 खुद ले रही हूँ. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई ओवर हियर 3 सो दैट वैल्यू विल रिमेन सेम. तो y/3 हो गई, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 3/3x माइनस 1 माइनस ये 3 और ये 3 कॉमन बाहर आ गए, तो 2/2x प्लस 3 प्लस 2/5 माइनस x.
right? Therefore dy by dx is equal to, ये 1/3 मैं अलग से ले लूंगी बिकॉज y इज वॉट, ये मेरा पूरा y है, तो आई नीड टू सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ y. सो व्हाट आई विल डू, इसके 1/3 मैं साइड में लिख दिया. इन प्लेस ऑफ y आई राइट दिस इनटू क्यूब रूट ऑफ 3x minus 1 whole divided by 3 in another bracket 5 minus x the bracket square. Okay, and then this bracket will remain same because here I have written y. So again I'll continue into bracket ये 3/3x minus 1 minus 2/2x plus 3 plus 2/5 minus x. Okay, gets completed. So this will be your final answer.